کہ نگران ضلع پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ صوبے بھر میں منشیات فروش مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا منشیات مافیا کی سرکوبی کے لیے پولیس بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے۔ ہم نے نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، اپڈیٹ کیجیے۔ آج نظام ضلع محسن نقوی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، جس میں انسپکٹر جنرل پولیس نے صوبہ بھر میں منشیات کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے صوبہ بھر میں منشیات کی خرید و فروخت کرنے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ منشیات مافیا کی سرکوبی کے لیے پولیس بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے مقروض دھندے کو روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے۔ ہم نے نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنا اور متعلقہ ادارے بہترین کوآرڈینیشن کے ذریعے منشیات مافیا کا خلا کرنا یقینی بنائیں۔ اب بریفنگ میں بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروشوں کی نشاندہی کے لیے مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے اور پرائیویٹ تعلیمی ہاسٹلس میں بھی منشیات فروشی روکنے کے لیے کڑی نگرانی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیا مالی سال شروع ہو گیا مگر LDA بجٹ کا استعمال شروع نہ ہو سکا۔ بجٹ منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر LDA میں غیر قانونی صورتحال۔ بجٹ اجرا میں تاخیر ہونے کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ LDA کے ذاتی وسائل سے شہر میں نئے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی۔ ٹینڈرز جاری کرنے پر پابندی آئی۔ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زین، مالی سال شروع ہو چکا ہے، بجٹ کا استعمال نہیں ہوا۔ بالکل، یہ LDA میں اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے کہ مالی سال 2023-24 کا آغاز ہو چکا ہے۔ نگران پنجاب حکومت نے بجٹ کی منظوری بھی دے دی ہے، لیکن ابھی تک اس کے میٹنگ منٹ جاری نہیں ہو سکے۔ تو اس طرح یہ نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے مگر LDA بجٹ کا استعمال شروع نہیں ہو سکا۔ بجٹ منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے LDA میں یہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور بجٹ اجرا میں تاخیر ہونے سے جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ LDA کے ذاتی وسائل سے شہر میں نئے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ چکی ہے، جبکہ LDA میں ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈر جاری کرنے پر بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر فائنانس LDA نے شعبہ انجینئرنگ کو ٹینڈر روکنے کی ہدایت کر دی ہے اور مالی سال 2023-24 کے بجٹ کا جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک ٹینڈر کا اجرا نہ کیا جائے، یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مالی سال 2023-24 بجٹ کی منظوری LDA گورننگ باڈی اجلاس سے ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کے میٹنگ منٹس کا اجرا نہیں ہو سکا۔ زین ہمارے ساتھ۔ زین، یہ بھی کہیے گا کہ ابھی تک جو ہے وہ بجٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، میٹنگ منٹس ہی ڈیسائیڈ نہیں کیے جا رہے، سگنیچر نہیں ہوئے، تو اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پر LDA کی طرف سے جو ڈرافٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس میں بھیج دیا گیا ہے، جس میں بجٹ منظور کرنے کی استدعا کی گئی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے ابھی تک ان میٹنگ منٹس کو ویٹ نہیں کیا گیا اور وزیر اعلیٰ آفس میں ہی ابھی تک یہ گورننگ باڈی کے جو میٹنگ منٹس ہیں وہ التوا کا شکار ہیں۔ تو اس وجہ سے ابھی تک LDA کے شعبہ C&I کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا اور ٹینڈر کا اجرا نہ ہونے سے جو شہر لاہور میں گلیوں محلوں میں LDA نے ذاتی وسائل سے ترقیاتی کام شروع کرنے ہوتے ہیں، یہ بجٹ نہ ملنے کی وجہ سے یہ تمام منصوبے التوا کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو شہر کے میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام اور پنجاب حکومت کی فنڈنگ سے شروع کیے گئے ہیں، ان کی جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے۔ میٹنگ منٹس التوا کا شکار ہیں۔ زین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ زین۔ اب آپ کو بتائیں کہ برطانوی ہائی کمشنر کی استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ جہانگیر ترین یہ کہتے ہیں کہ پاک برطانیہ تعلقات تاریخی ہیں جنہیں باہمی مفاد آگے لے کر جائیں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت علی سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل برطانوی ہائی کمشنر جیم ایریٹس کی IPC کے چیئرمین جہانگیر سنگھ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں پولیٹیکل کاؤنسلر سوئی ویئر، کلاسٹر اندوز علی ترین اور اون چودھری بھی شریک ہوئے اور دونوں کی ملاقات میں جو ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر جہانگیر سنگھ کا کہنا تھا کہ پاک برطانیہ تعلقات تاریخی ہیں اور ہم ان تعلقات کو باہمی مفاد میں آگے لے کر جائیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا بھی کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات کو وزن دیتے ہیں اور برطانیہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں جو تعاون کر رہا ہے اس کو مزید مستحکم بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ برطانوی ہائی کمشنر جو کہ حال ہی میں تعینات ہوئی ہیں تو ان کی یہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ नफसियाती मसाइल से दो चार शहरियों की मदद में पेश इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्टाफ फराहम करने की दरख्वास्त। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में नफसियाती मसाइल से दो चार और नशे के आदि शहरियों का रश रहने लगा है। स्टाफ की दरख्वास्त का मकसद ज़्यादा सर्विसेज फराहम करना है। इंचार्ज मरकज़ ने वाइस चांसलर को ख़त जारी कर दिया। मुदस्सिर हुसैन से तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ नफसियाती मसाइल से दो चार शहरियों की मदद जो है वो फराहम करना शुरू कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को खिदमात की फराहमी के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ जो है फराहम करने की दरख्वास्त कर दी गई है। इस हवाले से इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जानिब से वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम खत लिखा गया है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में नफसियाती मसाइल से दो चार और नशे और अशिया इस्तेमाल करने वाले शहरियों और बच्चों की रश की वजह से मावनत फराहम करने की जो है वो दरख्वास्त की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी और चाइल्ड सेक्रेटरी से मुतल्लिक हमारे स्टाफ को तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में तैनात किया जाएगा। मज़कूरा स्टाफ नफसियाती मसाइल से दो चार अफराद की स्क्रीनिंग और अमराज की तशख़ीस में मदद फराहम जो है वो करेगा। ऐसी बीमारियों से मुतासर शहरियों को खिदमात की फराहमी और हैंडलिंग के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो करेंगे। पुलिस मुलाज़मीन को नफसियाती अमराज के इलाज में स्क्रीनिंग और इलाज की सूरत जो है वो फराहम करेंगे। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जानिब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त भिजवा दी गई है और ये तोहफ़ा भी जारी है पंजाब पुलिस की तरफ से कि जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो अपना स्टाफ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को फराहम करेगा ताकि वहाँ पर जो मसाइल से जो दो चार शहरी हैं वहाँ पर उनका जो है वो इलाज मुमकिन हो सकेगा। जी मुदस्सिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। डीसी लाहौर की हिदायत पर इंसदाद डेंगू आगाही मुहिम में तेज़ी आ गई है। उधर बाटापुर में ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सेहत और सिविल सोसाइटी की मुश्तरका रैली, शहरियों में इंसदाद डेंगू इक़दाम पर मबनी पम्फलेट और आगाही मवाद तकसीम किया गया। जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि अवामी ताउन के बगैर डेंगू वायरस से निजात नामुमकिन है। जी इमरान अकबर, तफसीलात क्या हैं? हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर इंसदाद डेंगू आगाही मुहिम जो है वो जारी है और इस वाले से बाटापुर में ज़िले इंतजामिया, महकमा सेहत और सिविल सोसाइटी की मुश्तरका रैली निकाली गई। ज़िले इंतजामिया ने अवाम में इंसदाद डेंगू इक़दाम पर मबनी पम्फलेट और आगाही मवाद तकसीम किया। एसी शालीमार, शरीना जंजुआ और DDHO वाघा टाउन ने आगाही के शुरू में डेंगू मुकाऊ मुहिम बारे पहले प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें अवामी ताउन के बगैर डेंगू वायरस से निजात नामुमकिन है। अवाम तक आगाही पहुँचाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर भी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर आपके हैदर का कहना है कि अवाम को डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के हवाले से तरबियत और आगाही दी जा रही है, जबकि अवाम के ताउन कलीदी ताहम जबकि लार्वा मिलने की सूरत में मुतल्लिका अफसरान से ही जवाब तलबी होगी। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। डेंगू वायरस का फैलाव बढ़ने लगा है। शहर में डेंगू से पहली हिलाकत भी रिपोर्ट हुई है। निजी अस्पताल में जेर इलाज 50 साल इलियास दम तोड़ गया। CEO हेल्थ लाहौर का कहना है जाँ बहक होने वाले मरीज डेंगू पॉजिटिव के साथ मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार था। रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर कीमती जान ले गया। शहर में रमासाल डेंगू वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। निजी अस्पताल में जेरे इलाज 50 साल मोहम्मद इलियास जिंदगी की बाजी हार गया। महकमा सेहत के डैशबोर्ड पर मरीज की हलाकत दर्ज कर दी गई। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक ने बताया कि जांभक होने वाला मरीज वाघा टाउन का रिहायशी था। मोहम्मद इलियास डेंगू पॉजिटिव के साथ दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर का भी मरीज था। दूसरी जानिब शहर में डेंगू के मरीज भी बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 27 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 59 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान खान का कहना है कि रमासाल पंजाब भर में डेंगू के 802 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। जिला लाहौर में डेंगू के 266 मुसद्दिका मरीज सामने आए। सूबा भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 70 मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 40 मरीज दाखिल हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर लाहौर के तमाम इलाकों में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है। 851 घरों में डेंगू केस रिस्पांस जबकि 920 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। 24 घंटों में 1037 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। डेंगू ने जोर पकड़ लिया है। सुबह भर में शहर लाहौर डेंगू लार्वा को तल्फ करने की दौड़ में 22वें नंबर पर आ चुका है। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदाद डेंगू के मतलूबा इंतजाम करने से कासिर है। सरकारी रिपोर्ट ने कारकर्दगी का बांडा भी फोड़ दिया, जबकि कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए हैं। मजीद तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में।
डेंगू के बढ़ते खतरात, लाहौर में खातिर ख्वाह ना हुए इंतजामात। पंजाब भर में लार्वा तल्फ करने की दौड़ में लाहौर का 22वां नंबर आ गया। लाहौर डिवीजन में डेंगू के 2501 मरीज मौजूद हैं। मुश्तबा मरीजों की तादाद 2241 है। लाहौर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 270 है। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदाद डेंगू के इकदाम करने में नाकाम। सरकारी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंसदाद डेंगू कोशिशों में लाहौर का 22वें नंबर पर आना परेशान कुन है। मैनुअल डाटा एंड्रॉइड पर फौरी शिफ्ट किया जाए। एक हफ्ते में डेंगू लार्वा की अफजाइश कंट्रोल ना हुई तो छुट्टी समझे। शुरू से जो मैनुअल एक्टिविटीज़ हैं वो एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ की तरह आपको एकदम नज़र नहीं आती। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है एफर्ट अगर नज़र ना आए, रिकग्नाइज ना आए तो फिर उससे रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इनसे कहा था कि तमाम मैनुअल एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड के ऊपर ले आए। शहर लाहौर मॉडल शहर होने के बावजूद डेंगू की जद में आ गया। इंतजामिया की कार्रवाई दोहरों, फोटोशूट और मीटिंग्स तक महदूद। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं मौसम की। तो आसमान पर काली घटाओं का राज बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। बारिशों से शहर के निशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खदशा है। मौसम का हवाल मोहम्मद अली की इस वक्त जो कि शादमान में मौजूद है, उनसे जानेंगे। अजी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कुछ वक्त से बारिश शुरू हुई है, जिसमें जेर रोड, चाइना चौक, इसी तरह गुलबर्ग के इलाके हैं, धरपुरा साइड है, फतेहगढ़ है। क्योंकि लाहौर में बादल छाए हुए थे, हब्स की शिद्दत में बहुत इजाफा था। जो कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश है, उसकी वजह से कमी वाज़ेह हो रही है। बाकी अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम आज दर्जा हरारत कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है कि 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का दर्जा हरारत किया है। हवा में नमी का तनासिब 57% है। महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त तक कहा जा रहा है कि लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी। आंधी का भी इम्कान है। इसी तरह लाहौर में निशेबी इलाके हैं, कहा जा रहा है कि उनमें भी बारिश होगी, जिससे निशेबी इलाके जो उनसे उसके जो सा वो पानी भरने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मेरे कैमरे में अगर आपको दिखाए तो मैं इस वक्त जेल रोड पे मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल बैक पे बारिश हो रही है और ये सारा जेल रोड का इलाका, जितना शादमान चौक, इससे टूवर्ड जो सा फिरोजपुर रोड, और अगर बात की जाए बैक पे तो फिरोजपुर रोड से फ्रंट पे जो सा जेल रोड, ये तमाम एरिया जो सा इस वक्त बारिश की लपेट में। लेकिन माल के उस साइड गोरेला उसके बैक साइड पे बारिश नहीं है। एबट रोड पे कुछ हल्की बारिश हुई थी, जबकि दरबार साइड भाटी, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट उस साइड पे बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन हल्की बूंदाबांदी कहा जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की जा रही है। हब्स की शिद्दत में इजाफा था, उसमें कमी होगी। हवा 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और मौसम, अगर बारिश तेज़ होती है उससे मौसम मजीद खुशगवार होगा और हब्सों से उसकी भी कमी में जो हब्स है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। एमडी वासा गुफरान अहमद बारिश के साथ ही फील्ड में मुतहरिक नजर आए। कलमा चौक अंडरपास और मुबीन शहीद अंडरपास का दौरा किया गया। तमाम मरकजी शाहराहों को फौरी तौर पर क्लियर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। उनका कहना था कि बिजली की बंदिश की सूरत में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर पर चलाया जाए। इस बारे में मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, कहिएगा। इमरान यूसुफ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का आगाज ये 5:05 पर हुआ और अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम इस दौरान जो दादोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक जेल रोड पर 9, एयरपोर्ट पर 0.25, गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, अपर माल में 3, गुलशन राजी और समनाबाद में 2 और अलामा इकबाल टाउन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम शहर में होने वाली बारिश के बाद एमडी वासा गुफरान अहमद की जानिब से फील्ड में मुख्तलिफ मुकामात पर दौरे किए गए। एमडी वासा ने कलमा चौक अंडरपास और कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का दौरा किया। इसके साथ साथ मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर वाक़ जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनका भी मुआयना किया। एमडी वासा की जानिब से O&M के अफसरान को तमाम मरकजी शाहराहों को फौरी क्लियर करने की हिदायत जारी करते हुए ये कहा गया कि तमाम अंडरपासेस को क्लियर रखा जाए ताकि ट्रैफिक रवां दवा रहे, जबकि बिजली की बंदिश की सूरत में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर पर चलाने की हिदायत भी जारी की। जी, ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया ज़ैन। खबर आपको दें, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर-ए-सदारत DPS स्कूल के हवाले से इजलास हुआ है। तज़ीन व आराइश, हॉस्टल बहाली और स्कूल प्रॉपर्टी से मुतालिक जायज़ा लिया गया।
कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि DPS शहर का बेहतरीन इदारा है, जदीद तकाज़ों से आरास्ता करके काबिल फ़ख्र बनाएंगे। तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे इमरान अकबर। जी इमरान बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा इजलास हुआ। इजलास में DPS स्कूल की तस्दीक और हॉस्टल बहाली, स्कूल प्रॉपर्टी के से जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट जवेद रशीद चौहान, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद गुफरान अहमद, ACR इजहारुल हक बाजा समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने DPS को सोलर एनर्जी पर शिफ्टिंग पेशरफ की वर्किंग से आगाज किया। DPS की इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट रेट के हवाले से वैल्यूएशन भी की गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि माइलटाउन सोसाइटी को मुशावरत में लेकर DPS माइलटाउन की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। DPS माइलटाउन की मुकम्मल बहाली का आर्किटेक्चर, ब्यूटी और स्कूल की जरूरत से हम आहंग होना चाहिए। DPS के हॉस्टल्स की बहाली और तज़मीन और पर काम शुरू है, जबकि DPS में तमाम कामों की थर्ड पार्टी वैल्यूएशन साथ हो रही है। इस वजह से डिवीजन पब्लिक स्कूल की एकेडमिक्स की बहुत शुक्रिया इमरान आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। निगरान सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। निगरान पंजाब काबीना के इजलास में 22 निकाती एजेंडे ज़ेर गौर आए। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, अपडेट कीजिए, इजलास का हवाल बताइए। अजी निगरान पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत थोड़ी देर सबर सूबाई काबीना का इजलास शुरू हुआ है। वज़ीर ऑफिस में मुनक्किद इस पंजाब काबीना के इजलास में 22 निकाती एजेंडा जो है वो ज़ेर गौर है। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब पुलिस और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक है। पंजाब काबीना के 24वें इस इजलास में 22 निकाती एजेंडे का जायजा लेकर मफाद आमा के अहम इश्यूज की मंजूरी दी जाएगी और इस हवाले से मफाद आमा के लिए अहम फैसलों का जो है वो आज इम्कान है कि काबीना उनकी मंजूरी देगी। जी, तफसीलात आगाह करने के लिए शुक्रिया।